Before starting about the glycogenesis, subscribe and press the bell icon so that you will be automatically notified about all the lectures, about all the upcoming lectures. So now let's start with the topic glycogenesis. As the name indicates that genesis means synthesis or formation. So glycogenesis and glyco means glycogen. So glycogenesis is the formation, or you can say that the synthesis of the glycogen. So when does the glycogen synthesis takes place? Glycogenesis, when when you take the carbohydrate diet, the end product of the carbohydrate digestion or the breakdown of the carbohydrate end product is the glucose. So glucose is provided for to provide the energy. When there is excess intake of the carbohydrate diet, and then there will be the increased level of glucose in the blood. So to maintain and to minimize and to keep the level of the glucose inside the blood normal, the normal level of the glucose inside the blood is maintained at the level of 80 to 120 milligram per deciliter. So this is the normal range for the glucose inside the blood circulation. Whenever it exceeds, so what is done to that excess amount of the glucose? That excess glucose is stored in the body, and that can be used in to maintain the amount of the glucose, normal glucose level inside the blood circulation. The excess of glucose is stored in the body in the form of glycogen. So where the glycogen storage takes place, the glycogen is basically stored in the liver and in the muscles. There are specific enzymes that convert the glucose into the glycogen. So the glycogen synthesis mainly takes place in the liver and the muscle. The glycogen is stored in the liver, but whenever the body needs the glucose, or in the absence of the diet, or in case of between the meals, or in the fasting state, then what happens that this glycogen is converted back into the glucose. But the muscle, why the muscle needs the glycogen? In the muscle, the glucose is stored in the form of glycogen, and in case of external exercise, um, in the case of the movement of or contraction of muscles, that glycogen is then converted into glucose and utilized by the muscles for the purpose of the energy. So before studying the whole mechanism or the whole reactions for the synthesis of the glycogen, you must know about what is glycogen. ग्लाइकोजन आपके पास क्या होता है? ग्लाइकोजन इज अ जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में कि पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, ठीक है, डाइसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं. सो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेक्राइड यूनिट, right? So glycogen is a polysaccharide unit, means that it must be made up of many carbohydrate units. More specifically, glycogen is made up of glucose units. There are many glucose units combined together to form the glycogen. But the glucose units, how these glucose units are held together or joined together, they are the specific linkages. They have the glycosidic bond. Okay, so let's study the structure of the glycogen in detail. Okay, तो glycogen is a homopolymer of the glucose. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? repeated units होते हैं glucose के. They are repeated units of the alpha D glucose, right? So alpha D glucose are held together by the glycosidic bond, and the linkage is 1,4. Okay, let's see the structure in detail, and you will understand that glycogen जो है क्या होता है? आपके पास polysaccharide होता है, ठीक है, homopolymers होते हैं. It's a complex structure. It's a storage form of glucose in the liver and the muscles, and इसको हम storage form of जो है glucose उसको कहते हैं energy in the animal cells. ठीक है, animals में हम उसको जो है क्या कहते हैं कि storage form of एनर्जी है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लाइकोजन, कि उसमें आपके पास क्या होते हैं? बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं कि होमोपोलीमर. होमो मींस एक जैसे, सेम, मतलब सारे के सारे इसमें जो यूनिट्स होते हैं क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं. कोई और डिफरेंट यूनिट नहीं होता, सिर्फ ग्लूकोज का यूनिट होता है. So these glucose units are held together by the glycosidic bond. ये एक ग्लूकोज का यूनिट है, ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है, and they are held together by the glycosidic
बॉन्ड, उसमें आपके पास क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं. In glycogen molecule, there are almost 25,000 glucose molecules. So it's a homopolymer of about 25 glucose units combined together through linkages through glycosidic bonds, and that makes the glycogen molecule. So जो linkages होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं, एक आपके पास alpha 1,4 linkages होते हैं और एक alpha 1,6 होते हैं. ये जो आपके पास linear chain है, the straight chain, ये आपके पास हम इसको अमाइलोज भी कहते हैं, ठीक है, और जो ब्रांचेस उसकी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, अमाइलोपेक्टिन भी कहते हैं. सो ये जो स्ट्रेट चेन है उसमें आपके पास जो लिंकेजेस होती हैं दैट्स दी alpha 1,4 लिंकेजेस, और जो उसकी ब्रांचेस होती हैं वो alpha 1,6 लिंकेजेस होती हैं. पहले हम इन लिंकेज को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, राइट, ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, बिकॉज ग्लाइकोजन में आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्लूकोज के होते हैं. सो दिस इज द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, दैट्स द 6 कार्बन मॉलिक्यूल 1 2 3 4 5 6, एंड दिस इज द अदर मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, एंड 6 containing 6 carbon. So and these two glucose molecules are linked by the ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. एंड यू नो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, ठीक है, जो इसका OH एंड OH कंबाइन टुगेदर ओ रह जाता है, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है, ठीक है, एंड वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज. तो ये कौन सा लिंकेज है, दिस इज 1,4. सो यू कैन से हाइड्रोजन इज ऑन द अप साइड, ठीक है, तो दिस इज अल्फा, ठीक है. तो आपके पास क्या है, अल्फा है. अल्फा में हमारे आपके पास हमेशा जो है ये स्ट्रेट आपके पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है. अगर ये बीटा होता तो उसमें एन शेप आपके पास यहाँ पे जो है वो बॉन्ड होता है, ठीक है. तो दिस इज alpha 1,4 लिंकेजेस. तो इसलिए जो उसकी जो स्ट्रेट चेन होती हैं उसमें आपके पास सारी की सारी जो ग्लाइकोजन में जो लिंकेजेस होती हैं वो alpha 1 हो रही है. इसी तरह से 1 है आपके पास, ये रिड्यूसिंग एन है, एक और आपके पास 4 कार्बन अटैच हो सकता है. इसी तरह से आपके पास जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अटैच होते रहेंगे. दिस इज द 4 आपके पास जो है क्या है, इसका रिड्यूसिंग एंड है. तो यहाँ पे एक और जो आपके पास ग्लूकोज की एडिशन होती रहेगी, और आपके पास जो है बहुत सारा जो है लॉन्ग चेन ऑफ आपके पास जो है ग्लूकोज का बन जाएगा, जिसको फिर हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, ग्लाइकोजन दैट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन. तो दिस इज अबाउट द के व्हेन जस्ट रिकॉल अबाउट द के वन alpha 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है. ओके, देन alpha 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जैसे बताया कि ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि alpha 1,4 लिंकेज सब के सब ग्लूकोज यूनिट होते हैं, लेकिन दिस इज द ग्लूकोज यूनिट दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय द alpha 1,4 लिंकेजेस, एंड देन देयर आर alpha 1,6 लिंकेजेस. तो 1,6 लिंकेजेस कैसे होते हैं, दिस इज कार्बन 1, ठीक है, जैसे नंबरिंग में आपको बताया 1 2 3 4 5 एंड 6. तो दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. so there is a bond between first carbon and 6 carbon, ठीक है. फर्स्ट कार्बन का और 6 कार्बन का OH जो है उसका भी OH इसका भी OH, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा लेफ्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है. तो कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन, सो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है. तो इसका भी हाइड्रोजन, यू कैन सी हाइड्रोजन इज ऑन द अपर, सो दिस इज अल्फा, ठीक है. तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, alpha 1,6, ठीक है. 1,6 जो उसके कार्बन नंबर होते हैं, ठीक है, 1,6 इज नेम द पोजीशन ऑफ द कार्बन नंबर. सो alpha 1,6 बॉन्ड इज फॉर्म, ठीक है. तो वो आपके पास जो alpha 1,6 है वो क्या बनाते हैं, उसकी साइड चेन, उसकी ब्रांच जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं. सो दिस इज हाउ द ग्लाइकोजन स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास जो है alpha 1,4 लिंकेजेस होती हैं, और जो ब्रांचेस होती हैं, जो मेन ब्रांच पॉइंट होता है वहाँ पे alpha 1,6 होता है, लेकिन फिर उसके बाद जो बाकी उसका स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या होता है, alpha 1,4, बाकी भी उसकी क्या होती है 1,4 लिंकेजेस उसकी होती है. बाकी सारी सिर्फ जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है, सिर्फ एक पॉइंट, वहाँ पे क्या होता है 1,6 बॉन्ड होता है. बाकी जो है उसकी आगे से जो चेन होती है वो भी 1,4 लिंकेजेस होती है. ये भी 1,4 लिंकेजेस होते हैं, ये भी 1,4 लिंकेजेस होते हैं, लेकिन बट द मोस्ट स्पेसिफिकली जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, alpha 1,6 होता है. ओके, तो नाउ लेट्स कम टू द ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे, कि आपके पास जो है ये सारे जो ग्लाइकोजन का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो भी हमने पढ़ा कि आपके पास ग्लाइकोजन का कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है एनिमल में, ठीक है. ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म होता है व्हेनेवर देयर इज एक्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट डाइट, या ग्लूकोज की जब आपके पास ब्लड सर्कुलेशन में उसको मेंटेन किया जाता है उसकी नॉर्मल वैल्यू को, तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता है, मतलब आपको इतनी एनर्जी इट प्रोवाइड्स, ग्लूकोज प्रोवाइड्स द एनर्जी, बट उसकी जो है यूज से, नीड से
ज़्यादा अगर है तो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन एंड दैट ग्लाइकोजन विल बी used whenever the body needs or the glucose. ठीक है, जब एक्सटर्नस एक्सरसाइज हो, मसल कंट्रैक्शन हो, या जो है बाकी अगर नीड फूड जो है वो उसकी इनटेक नहीं हो रही है तो उस केस में, या फास्टिंग की स्टेट में क्या होता है, तो यही ग्लाइकोजन से जो आपके पास ग्लूकोज जो है वो वापस से बॉडी को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन नॉर्मल जो उसकी वैल्यू है उसको मेंटेन किया जा सके. So the glycogen, now let's come to the glycogen's pathway, how this a complex molecule, or how this formation of this glycogen molecule takes place. तो there are the different steps. ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या होंगे, हर एक स्टेप को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस कैसे होगा, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन टेक्स प्लेस. कि ग्लाइकोजन का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 जो है वो ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं, ग्लूकोसाइड यूनिट्स होते हैं. सो हाउ दिस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होंगे, उसके जो है आपके पास डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं. मोस्ट स्पेसिफिकली जो है इसमें आपके पास 5 एंजाइम यूज होंगे, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज. ठीक है, और उसके अलावा फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, यूरिडीन डाइफॉस्फेट, ग्लूकोपाइरोफॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन सिंथेज एंड ब्रांचिंग एंजाइम. ठीक है, सो ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम पहले जो है हर एक स्टेप को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हाउ दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate and then glucose 1 phosphate and how this all process takes place and leads to the formation of the glycogen. When there is excess of glucose through in the blood circulation through some feedback mechanism or by the action of some hormones, the excess of glucose, it will be transported inside the blood. When the glucose enters into the blood through special transport mechanisms, ठीक है, special transport mechanisms होंगे, blood transport mechanisms होते हैं जो glucose को transport करेंगे inside the cell. So when the glucose enter inside the cell, जैसे ही cell में glucose enter होगा, then it will be phosphorylated. ठीक है, उसकी क्या होती है, 6 पोजीशन पे ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. उसके 6 कार्बन पे क्या कर दी जाती है, फॉस्फोरिलेशन की जाती है. जैसे इसकी फॉस्फोरिलेशन कर दी जाती है, इट्स इनपरमिएबल. ठीक है, क्या होता है कि इट कैन नॉट गो बैक आउटसाइड दी सेल. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो सो इट डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड टू कम again into the circulation. Okay, so this step is similar to that of the glycolysis and pentose phosphate pathway. Okay, so glucose is converted into glucose 6 phosphate, and here the enzyme is glucokinase and hexokinase. Okay, so glucokinase that more specifically will be present in the liver, and hexokinase in the muscles, and this step requires the presence of the energy that ATP will be converted into ADP. Okay, so glucose is converted into glucose 6 phosphate. 6 phosphate means that ATP will be converted into ADP. जो ATP होगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट विल बी कन्वर्टेड टू डाइफॉस्फेट, एंड रिवर्स फॉस्फेट जो है वो आपके पास इस ग्लूकोज के 6 पोजीशन पे अटैच हो जाएगा. सो द ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate at the expense of the ATP, जो फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो जाएगा. एंड द एंजाइम हियर विल बी द hexokinase in the muscles and glucokinase in the livers. Okay, so this glucose 6 phosphate, this is the first reaction in the in the glycogenesis. Okay, हम पढ़ रहे हैं formation of the glycogen के how the complex structure of the glycogen is formed, right? तो ग्लूकोज को जो है स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को कंबाइन किया जाता है और उससे जो है कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट्स द ग्लाइकोजन. ओके, सो द फर्स्ट रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जो सेकंड स्टेप होता है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में. तो एज द नेम इंडिकेट्स 6 फॉस्फेट है तो मतलब 6 पोजीशन पे फॉस्फेट है, तो वही फॉस्फेट को शिफ्ट किया जाता है फर्स्ट कार्बन पे. तो जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से उसके 6 पोजीशन से फॉस्फेट को अगर फर्स्ट कार्बन पे शिफ्ट कर दिया जाए तो आपके पास वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाएगा. ठीक है, सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. और जो एंजाइम एक्ट करता है वो आपके पास क्या होगा, phosphoglucomutase. Glucose 6 phosphate is converted into glucose 1 phosphate with the help of the enzyme phosphoglucomutase. ठीक है, सो म्यूटा रोटेशन होगी कि जस्ट उसमें जो है आपके पास शिफ्टिंग होगी आपके पास इस ग्रुप की जो है वो फर्स्ट कार्बन पे. ठीक है, सो ग्लूकोज 1 phosphate. So this glucose 6 phosphate is converted into the glucose 1 phosphate. ठीक है, फॉस्फेट जो है वो फर्स्ट कार्बन पे अटैच हो जाएगा, राइट? So this is the second step in which the glucose 6 phosphate is converted to glucose 1 phosphate, जिसमें क्या होती है, just phosphoglucomutase. ठीक है, सिर्फ म्यूटा रोटेशन होती है 6 कार्बन से फर्स्ट कार्बन पे जो है वो
शिफ्टिंग होती है। नाउ अब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो बन गया है, ठीक है, why this glucose 1 phosphate formation is required, because for the attachment of the UDP, that's the uridine triphosphate। इसमें आपके पास बेस जो है वो क्या है, यूरिडीन है, राइट। सो यूरिडीन जो है, यूरिडीन विथ 3 फॉस्फेट 1 2 एंड 3, ओके। अच्छा, तो ग्लूकोज 1 phosphate with the uridine triphosphate will react and will form the UDP glucose, uridine diphosphate glucose। तो इसका जो है आपके पास क्या होगा कि एक फॉस्फेट, यूरिडीन का एक फॉस्फेट, और साथ में जो है ग्लूकोज का एक फॉस्फेट, राइट। तो ये दो फॉस्फेट जो है आपके पास होंगे तो आपके पास क्या होगा, यूडीपी ग्लूकोज बन जाएगा, राइट। यूडीपी ग्लूकोज उसका अपना ही ग्लूकोज का 1 फॉस्फेट, साथ में जो है यूरिडीन का एक फॉस्फेट, मतलब यहाँ से यूटीपी है, ट्राइफॉस्फेट है। तो यूरिडीन जो है इसके एक फॉस्फेट जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और दो फॉस्फेट जो है पायरोफॉस्फेट आपके पास क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। स्पायरोफॉस्फेट आपके पास क्या है, दो फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, अगेन इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करेगा, दैट विल बी द जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट विल बी द pyrophosphatase, and that pyrophosphatase will split these two phosphate into separate two inorganic phosphate, ठीक है। जो pyrophosphate है इसके ऊपर pyrophosphatase एक्ट करेगा और दोनों को क्या कर देगा, टू सेपरेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ओके। सो यूडीपी ग्लूकोज, और जो यहाँ पे एंजाइम एक्ट करता है, इस द नेम इंडिकेट्स यूडीपी ग्लूकोज, तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा दैट विल बी द यूडीपी ग्लूकोज, मींस दैट यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज, ठीक है। यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, एंड दैट विल जो है, जो आपके पास ये रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, दैट ग्लूकोज 1 phosphate टुगेदर विद द यूटीपी इट विल फॉर्म यूडीपी ग्लूकोज, एंड पायरोफॉस्फेट विल बी रिलीज, एंड पायरोफॉस्फेट पे जो है वो पायरोफॉस्फेटेज एक्ट करेगा और इसको दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जो है वो स्प्लिट कर देगा। देन इन द नेक्स्ट रिएक्शन दिस यूडीपी ग्लूकोज, ये जो फॉर्मेशन हो रही है यूडीपी ग्लूकोज की, बेसिकली किसके लिए हो रही है, अब ये जो यूडीपी ग्लूकोज है इसकी अटैचमेंट होगी ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ। बॉडी में जो है हमेशा क्या होता है कि जो यूडीपी ग्लूकोज है, कभी भी आपके पास जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है उसका एक प्राइमर जो है 2 या 3 4 जो है वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो है वो हमेशा ग्लाइकोजन में जो है ऑलरेडी 3 ग्लूकोज यूनिट्स पहले से प्रेजेंट होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं, या ग्लाइकोसाइड यूनिट्स भी हम उसको कहते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोजन प्राइमर जो है वो हमेशा से पहले से प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो हमेशा से प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन प्राइमर होगा। देन ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ ये जो यूडीपी ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई है, यही ग्लाइकोजन का प्राइमर होता है, उसमें कम से कम 2 या 3 यूनिट्स तो जरूर होते हैं, ठीक है, 2 या 3 यूनिट्स जरूर होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन प्राइमर, वो पहले से ही प्रेजेंट होता है बॉडी में, ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड होता है, नेचुरली बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन प्राइमर है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। देन ये जो यूडीपी ग्लूकोज है इसकी जो प्रिपरेशन हुई है सारी सिर्फ इसलिए हुई है ताकि उसकी अटैचमेंट हो ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ, राइट। अच्छा, अब इस स्टेप में क्या होगा, इन दिस यूडीपी ग्लूकोज, this UDP, uridine diphosphate, is attached to this glucose molecule at the first carbon. So its first carbon of this glucose will form the glycosidic bond with the carbon 4 of this glycogen primer, ठीक है। जो glycogen primer है इसका जो फोर्थ एंड है इसको आप देख सकते हैं, दिस इज द रिड्यूसिंग एंड, ठीक है। आपके पास क्या है, फ्री एंड है, ये आगे से जो है रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, और यहाँ पे जो है आपके पास क्या होगा, it will form the glycosidic bond. This first carbon will react with this fourth terminal carbon, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, it will form the glycosidic bond, ठीक है। So this glucose first alpha 1 and this is 4, so alpha 1 4 glycosidic bond की formation होगी, and as a result क्या होगा, this uridine diphosphate जो एक और inorganic phosphate होगा उसके साथ combine होके it will again form the uridine triphosphate. This uridine diphosphate will again accept the inorganic phosphate and will become the uridine triphosphate, it will be again released। और आपके पास जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ ये यूडीपी ग्लूकोज जो है आपके पास अटैच, ठीक है, यहाँ से ग्लूकोज जो है वो अटैच हो गया, अल्फा 1 4 लिंकेज हुई। इसी तरह से ये वाला प्रोसेस जो है यहाँ तक जो पीछे से 3 रिएक्शंस थे, दिस यूडीपी ग्लूकोज फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। द ग्लूकोज विल बी converted into glucose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate will be converted to glucose 1 phosphate, and then glucose 1 phosphate will form the UDP glucose, and then
यही सेम रिएक्शन होता रहेगा और ये इसके साथ जो है इसकी अटैचमेंट होती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से एक और नया मॉलिक्यूल आएगा, वो फिर यहाँ पे अटैच होगा, इट विल फॉर्म अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस तरह से एक और आएगा अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, ये प्रोसेस जो है यहाँ तक की सारा प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा अंटिल व्हेन अ टाइम विल रीच व्हेन इट विल रीच टू ऑलमोस्ट 10 to 11। ठीक है, जब 11 to 12 या 8 to 10 जो है आपके पास ये ग्लूकोज रेजिड्यूज अटैच हो जाएंगे, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन कि वहां पे जब इसके पास जो है इसकी अटैचमेंट होती रहेगी एंड सम केसेस 8 to 9 एंड 10 to 12 जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट हो जाती है, देन अ टाइम विल कम जहाँ पे फिर क्या होता है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम आ जाता है। ठीक है, सॉरी, ब्रांचिंग एंजाइम आ जाता है। ठीक है, जो ब्रांचिंग एंजाइम है वो क्या करेगा कि वहां पे उसके साथ ब्रांच अटैच करेगा। जैसे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में हमने कहा कि अल्फा 1 4 लिंकेजेस भी होते हैं और साथ में उसकी ब्रांचेस भी होती हैं, क्योंकि यही फर्क है ग्लाइकोजन और स्टार्च में कि ग्लाइकोजन जो है वो आपके पास क्या होता है, इट इज मोर ब्रांच, ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर आपके पास इसी तरह से इस प्रोसेस के थ्रू बनता रहेगा। और ये वाला जो रिएक्शन था जिसमें आपके पास ग्लूकोज की अटैचमेंट होती रहेगी, यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है दैट्स द ग्लाइकोजन सिंथेज। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज क्या करता है, यूडीपी ग्लूकोज की जो है यहाँ से यूडीपी को एज ए यूटीपी रिलीज करता है और ग्लूकोज की अटैचमेंट जो है वो करता जाता है until there will be the attachment of 10 to 12 glucose molecules और आपके पास जो है linear chain of alpha 1 4 linkages जो है वो अटैच होते रहते हैं। वो आपके पास जो है the reaction is catalyzed with the glycogen synthase। then what happen कि फिर क्या होता है, एक ब्रांचिंग एंजाइम आता है। what the branching enzyme will do, ठीक है, ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, ठीक है, इसलिए ग्लाइकोजन सिंथेज जो क्या करता है, न्यूली एडेड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऐड करता जाता है, जो ग्रीन आपके पास दिखाया गया कि ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को ऐड करता जाएगा। सो नाउ फिर एक टाइम आएगा जब इसमें जो है तकरीबन एक लॉन्ग चेन आपके पास बन जाएगी। दिस इज द अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। देन ब्रांचिंग एंजाइम क्या करेगा, ब्रांचिंग एंजाइम जिसको हम कहते हैं अमाइलो 1 4 to 1 6 trans glucosides। ठीक है, this branching enzyme is also known as amylo 1 4 to 1 6 trans glycosides। so 1 4 to 1 6 trans glucosides, what does it mean कि जो यही जो लीनियर चेन है अल्फा 1 4 की, उससे क्या करेगा कि कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को 1 4 यहाँ से ब्रेक करके उसको ब्रांच पे शिफ्ट करेगा। ठीक है, सो इट विल शिफ्ट देम टू द ब्रांच। ठीक है, जो क्या करेगा, ब्रांच पे शिफ्ट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहां पे क्या कर देगा, जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहां पे आपके पास क्या हो जाएगी, अल्फा 1 6 बॉन्डिंग होती है। ठीक है, दिस ब्रांचिंग पॉइंट, दिस स्पेसिफिक सिर्फ ये वाला जो ब्रांचिंग पॉइंट है वहां पे आपके पास कौन सा है, अल्फा 1 6 बॉन्डिंग है। बाकी जो उसके आगे से जो चेन्स हैं वो क्या होती हैं, वो अल्फा 1 4 ही होती हैं। सो व्हाट द ब्रांचिंग एंजाइम विल डू कि अब जो है उसकी सिंथेसिस होगी या न्यूली आपके पास जो है बन गई है, तो उसकी जो है यहाँ से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, यहाँ से उसकी ब्रेकेज करेगा। कुछ जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास यहाँ से एक नई ब्रांच बनाएगा। ठीक है, ये नई ब्रांच बन रही है यहाँ पे। ठीक है, तो दैट विल बी द अल्फा, जो ब्रांचिंग पॉइंट है 1 6 है और बाकी उसकी क्या कर देगा, उसकी अटैचमेंट कर देगा। दिस फर्स्ट कार्बन यहाँ पे जो है वो 6 कार्बन, जो ये साथ वाली है उसके 6 कार्बन पे जो है वो वहां पे बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे ब्रांचेस इसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। ग्लाइकोजन सिंथेज जो है न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अटैचमेंट करता रहेगा। ठीक है, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होती रहेंगी, फिर वहां से ब्रेक करेगा, ट्रांसफर करेगा और जो है वो नई ब्रांचेस बनती रहेंगी। सो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू और आपके पास जो है हाईली कम्प्लेक्स, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर जो है आपके पास ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती रहेगी। सो दी होल प्रोसेस, जो आपके पास होल प्रोसेस आपको बताया कि वो आपके पास कैसे था, ग्लाइकोजेनेसिस का, दैट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोजन टू स्टोर द ग्लूकोज। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जिसमें आपके पास अल्फा 1 4 लीनियर जो लिंकेजेस होती हैं और जो सिर्फ ब्रांचिंग पॉइंट जो स्पेसिफिक होता है उसमें आपके पास अल्फा 1 6 जो है वो आपके पास उसकी लिंकेज होती है। सो ग्लूकोज सबसे पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में एंड द एंजाइम इज हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज, और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, सो पोजीशन चेंज किया जाता है 6 से 1 पे। सो द एंजाइम विल बी द फॉस्फोग्लूको म्यूटेज, जो कि म्यूटेशन करेगा 6 से फर्स्ट कार्बन पे उसको शिफ्ट करेगा। सो व्हाई दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज फॉर्म्ड because
उसकी क्या होती है, अटैचमेंट होती है, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट विल कम। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसका एक फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, साथ में यूरिडीन है, डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट इसका और एक फॉस्फेट इसका, तो यूरिन ट्राइफॉस्फेट में से एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जो दो फॉस्फेट है दैट विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ pyrophosphate. This pyrophosphate will then again be hydrolyzed by the broken down by the pyrophosphatase into two separate inorganic phosphates. Okay, so urine diphosphate glucose जो है ये क्या करता है, फिर आपके पास जो ग्लाइकोजेनिन मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेन प्राइमर, ग्लाइकोजन प्राइमर जो है उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज, यहाँ पे एंजाइम एक्ट करेगा, दैट विल बी द ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज जो है क्या करेगा, यूरिन डाइफॉस्फेट में से जो ग्लूकोज है उसकी अटैचमेंट करेगा ग्लाइकोजन प्राइमर के साथ। ठीक है, उसका फोर्थ कार्बन रिड्यूसिंग एंड, और इसका फर्स्ट कार्बन जो है वो यूडीपी क्या करेगा, उसको अटैच करवाएगा ग्लूकोज की फर्स्ट कार्बन, यूडीपी इज अटैच टू फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज, तो वहां से यूडीपी जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वो यूडीपी विल अगेन बिकम यूटीपी, फाइंड द अदर फॉस्फेट एंड बिकम यूटीपी। लेकिन यूडीपी का काम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होता है तो उसको फोर्थ कार्बन जो इसका रिड्यूसिंग एंड है ग्लाइकोजन प्राइमर वहां पे अटैच कर देगा। तो इसी तरह से जो है ग्लाइकोजन सिंथेज उसकी आपके पास क्या करता है, अटैचमेंट करता है। 1,4 ग्लाइकोसाइड रेजिड्यूज आपके पास ये प्रोसेस होता रहेगा, उसकी अटैचमेंट होती रहेगी। ठीक है, यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज आते रहेंगे, यूडीपी ग्लूकोज को लेकर आता रहेगा, प्राइमर्स के साथ उसकी अटैचमेंट होती रहेगी अंटिल आपके पास जो है थोड़ा सा लॉन्ग चेन बन जाता है। ठीक है, देन फिर क्या होता है कि ब्रांचिंग एंजाइम क्या कहते हैं कि वो क्या करेंगे, जो अल्फा 1,4 की जो आपके पास लॉन्ग चेन है वहीं से कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ 3,4 जो ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं उनको वहां से ट्रांसफर करेंगे एक ब्रांचिंग पॉइंट पे। ठीक है, वहां से जो है उसका जो फर्स्ट कार्बन है दैट विल अटैक दी जो 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन पे वहां पे क्या करेगा, 1,6 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, वहीं से उसी जो आपके पास 1,4 ग्लाइकोसाइड रेजिड्यू है वहीं से ब्रेक करके उसको ट्रांसफर करेगा, फोर्थ से उसको ब्रेक करके क्या करेगा, 6 कार्बन पे अटैच करेगा, और वहां से एक नई ब्रांच आपके पास बनने शुरू हो जाएगी। फिर वही जो ब्रांच होगी वो आपके पास क्या होगा, उसी ब्रांचेस, द ब्रांचेस ग्रो बाय फर्दर एडिशंस ऑफ 1,4 ग्लाइकोसाइड यूनिट्स एंड फर्दर ब्रांचिंग। ठीक है, जो आपके पास 1,4 ग्लाइकोसाइड रेजिड्यूज होंगे, ठीक है, वो भी इसी तरह से जो उसकी ब्रांच होगी फिर इसके आगे से वही ग्लाइकोजन सिंथेज उसकी फॉर्मेशन करेंगे, फिर डी ब्रांचिंग एंजाइम, सॉरी ब्रांचिंग एंजाइम जो है वो एक्ट करेंगे, और इसी तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, द ब्रांचेस ग्रो by further additions of 1,4 glycoside residues, and further branching occurs, and then it forms the complex structure of the glycogen.